Hello students, welcome back to your business studies class. Today we will be talking about Fayol's 14 principles of management. Now this Henry Fayol, he had identified 14 principles of management which help the people of management to sort out their problems, to work efficiently, and many more things were sorted out of these principles. Now this Henry Fayol was born in France in 1841 and he was also famous as father of management and thoughts. He was also known as father of management and thoughts. Right. Now, he had discovered these principles out of his experience, out of his practice, and he had given them all to the world that if you find solutions out of these principles, so you can work upon them because these are tried and tested by him. Okay, so now we'll be moving on to those 14 principles. We'll be doing them 3 group mein, so that you understand more easily, right? So now we'll be pushing up to the first principle of management, which is division of work. The word itself signifies the importance. Division of work. Divide मतलब भाग कर देना. ठीक है, डिवाइड कर देना. अगर आपके पास इतना सारा पैकेट है उठाने के लिए, इतना सारा सामान है उठाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा अपने ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो. Similarly, when we talk about management, we have to divide the work in small portions so that the result comes out to be more effectively and efficiently. देखिए, अगर हम सब कुछ करने जाएंगे, सब कुछ मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, so we'll end up doing nothing. Result will be zero. फिर हमें फिर से वहीं से start करना पड़ेगा. Right. So this division of work says that divide work in smaller groups. छोटे छोटे ग्रुप्स बना दीजिए और काम दे दीजिए. ठीक है. And secondly, it also says one person with one work. One person with one work, because it brings out the efficiency. अगर एक व्यक्ति के पास एक ही काम देंगे तो वो उस एक काम को सक्सेसफुल बनाने में पूरा अपना ध्यान लगा देगा, फोकस करेगा, राइट? इसीलिए he said that one person with one work, and this will bring out specialization. इससे क्या होगा? डेफिनेटली आप उसको एक ही काम दे रहे हैं तो आप उसकी स्पेशलिटी की बेसिस पे देंगे. ठीक है, जिसमें ये बहुत पूर्ण है, जो काम ये बढ़िया कर सकता है. ठीक है, तो एक तो इट ब्रिंग्स आउट स्पेशलाइजेशन एंड इट ब्रिंग्स आउट एफिशिएंसी. दैट इज व्हाई ही सेड दैट डिवाइड द वर्क इन स्मॉलर ग्रुप्स. छोटे छोटे ग्रुप्स बना दीजिए और उसमें काम बांट दीजिए ताकि काम जल्दी होगा, ऑन टाइम होगा, एफिशिएंटली होगा एंड डेफिनेटली परफेक्ट होगा, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे होगा. राइट. सेकेंडली ही टॉक्स अबाउट, आई विल रब ऑल ऑफ देम वन बाय वन. Second, he talks about authority and responsibility. Now, what do you understand by these two words? Authority and responsibility. Authority simply means I have power. Power with me is authority. And what is responsibility? Responsibility is the obligation to complete the task on time
on time, right? So power is the power which is being given to me so that I get the work done from my fellow workers. ऐसी पावर जो मुझे टॉप लेवल ने दी है, जिसके बिहाफ पे मैं बाकी लोगों से काम करवा सकता हूँ. देखिए, अगर आपके पास पावर नहीं होगी तो आप दूसरों से काम नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूसरा आपकी क्यों सुनेगा, अनलेस आप उससे थोड़ा सा लेवल हाई नहीं है या आपके पास कोई उससे एक्स्ट्रा पावर नहीं है. ठीक है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि अगर किसी ने आपको पावर दिया है तो डेफिनेटली उसकी जवाबदारी भी आप ही की बनती है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही इज गोना कॉट योर नेक, और अगर अच्छा है देन ही इज गोना पैट यू. शाबाशी भी आपको ही मिलेगी और गर्दन भी आपकी पकड़ी जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है. तो ये इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. समय पे काम खत्म करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आपकी अथॉरिटी क्या है कि आपको जो पावर दी गई है वो काम खत्म करवाने के लिए. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट. अगर आपके पास पावर है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो आपको पावर की भी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. Discipline. What do we understand by this discipline? आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोग स्कूल में पढ़े हैं, सबको पता है डिसिप्लिन क्या होता है. टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉलो द रूल्स, फॉलो द रेगुलेशंस, टू फॉलो द गाइडलाइंस, टू वर्क सिस्टमैटिकली. ये सब होता है डिसिप्लिन. तो ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि वो डिसिप्लिन से काम करे, सब चीजों को बैलेंस करके रखे, सिस्टम से काम करे, बिकॉज तभी उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी उसकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में. और मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो डिसिप्लिन से काम कराए, वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, वो गाइडलाइंस दे लोगों को, ताकि वो सिस्टम से काम कर पाए. सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी प्रकार के आप ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, स्मॉल स्केल है, बिग वंस है, व्हाटएवर, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हमने 3 पढ़ लिए बच्चों, साथ साथ रिवाइज भी करेंगे. एक हमने कौन सा पढ़ा था? नंबर 1, डिविजन ऑफ वर्क. सेकंड हमने क्या पढ़ लिया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड थर्ड हमने पढ़ लिया डिसिप्लिन. आपके सामने ही लिखा हुआ है डिसिप्लिन. तो अब ये तीनों आपको याद हो गए हैं अच्छे से. जो मैंने इसके नीचे सब हेडिंग्स लिखी हैं वो आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर द की वर्ड्स. आपको वर्ड्स इस्तेमाल करना जरूरी रहेगा. जैसे कि अगर हम डिसिप्लिन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डिसिप्लिन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द गाइडलाइंस गिवन बाय द मैनेजर्स. The workers have to work, the employees have to work systematically. They have to maintain the discipline. It is their prime duty to work according to the rules and regulations given by the organization. Right? तो अब ये 3 आपको अच्छे से हो गए. Now I'll move on to the next 3. Next principle we have unity of command. Unity of command simply means, unity मतलब एकता, command मतलब ऑर्डर देना. तो वो जो कमांड देने में एकता है ना, वो फॉलो करनी है, which means कि there should only be one boss whom an employee has to follow. अगर उसके पास एक से ज्यादा बॉसेस होंगे तो he will get confused. वो हमेशा ही कंफ्यूजन में ही रहेगा कि मुझे फॉलो किसको करना है एग्जैक्टली. राइट? इसीलिए Fayol said that there should always be one boss so that he comes to a final result
so that the employee is not confused, so that it does not hamper his efficiency, his effectiveness. So always the commands given to the employee should be only by one's superior, so that this part of confusion is eradicated. Then there will no ego clashes also. How ego clashes? ये नहीं सोचेगा कोई भी बॉस कि अरे मैंने तो इसको ये बताया था, इसने मेरा काम तो किया नहीं. दूसरा सोचेगा हाँ उसका कर दिया, मेरा नहीं किया. तो वो ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, वो एम्प्लॉय के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसीलिए देयर शुड ऑलवेज बी वन बॉस, राइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी तो सबको पता है क्या है, डायरेक्शन मतलब रास्ता. अब एम्प्लॉय को कौन सा रास्ता पकड़ना है काम कंप्लीट करने के लिए. इन सिंपल टर्म्स, वन यूनिट, वन प्लान. अगर हमारा एक डिपार्टमेंट है पूरा, तो डिपार्टमेंट के सभी लोगों का फोकस उसी एक प्लान पे होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आधों के पास कुछ है, आधों के पास कुछ है. सबके पास एक ही प्रकार का प्लान होना चाहिए ताकि सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर सके. अब इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ. अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता भूल गए, आपने रास्ते में किसी से पूछा, अरे भाई साहब वो कहाँ पड़ता है बताइएगा जरा. उसने बोला आगे जाके लेफ्ट ले लीजिए. नाउ यू क्लियर, आगे जाके लेफ्ट लेना है. आगे जाके लेफ्ट ही नहीं मिला. तब आपने क्या सोचा, अब किसी और से पूछता हूँ. उससे पूछा तो उसने बोला अरे भाई साहब आप यहाँ कहाँ आ गए, यू टर्न लेके वापस वहां जाइए. ओहो, कंफ्यूजन, दूसरी डायरेक्शन मिलकर यू टर्न लेके वापस पहुंचे. फिर किसी से पूछा, उसने बोला ओफो ये कहाँ खड़े हैं, हाँ वो तो 4 गली छोड़ के है. कितना कंफ्यूजन है मैन, राइट. तो ये क्या है, डायरेक्शन की यूनिटी नहीं है. इसीलिए आजकल लोग एक दूसरे से खिड़की खोल के गाड़ी की पूछना बंद कर दिया है. अब तो सिर्फ जीपीएस पे बिलीव करते हैं. तो यही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि अगर आप एम्प्लॉय को भी अलग अलग प्रकार के प्लान्स बताते रहेंगे तो वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि मुझे करना क्या है, और वो किसी में भी अच्छा नहीं कर पाएगा. तो सारे डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए देयर शुड बी वन यूनिट के लिए देयर शुड बी वन प्लान. एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होना चाहिए ताकि सब लोग उसी की तरफ काम करें. देन नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ इज subordination of individual interest to general interest. Which is very simple. Subordination मतलब शिफ्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. क्या चेंज होना चाहिए, इंडिविजुअल टू general. Don't think only about your objective. First think about the organization. जैसे कि अगर एक मैनेजर है, उसने रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है. अब रॉ मटेरियल उसने सोचा कि मैं अपने रिश्तेदार की दुकान से खरीद लेता हूँ तो मे बी मुझे कुछ कंसेशन, कमीशन, गुड रिलेशनशिप, किसी के बारे में भी सोचते हुए वो ये सोचता है कि मैं अपनी जान पहचान वाली दुकान से खरीद लेता हूँ. ये सोचे बिना कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा या नुकसान होगा. वो रेट्स कंपेयर नहीं करता, वो चेक नहीं करता, वो सीधा खरीदने पहुंच जाता है अपनी जानकारी वाली दुकान पे. वो कहलाएगा कि ही इज थिंकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द जनरल इंटरेस्ट. रादर ही शुड थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड देन हिज ओन इंटरेस्ट. अगर उसका और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सेम है देन इट इज परफेक्ट, गुड रिलेशनशिप. और अगर उसका इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग अलग है तो उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट के बारे में सोचना है और इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना है, विच इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब हमने कितने पढ़ लिए प्रिंसिपल्स बच्चों? नंबर 1 इज डिविजन ऑफ वर्क. मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, आपको 6 अभी के अभी याद हो जाएंगे. नंबर 1 इज डिविजन ऑफ वर्क, right? Division of work says divide the work into smaller groups. Okay. Number 2 is
authority and responsibility. Authority is the power and responsibility is the obligation to complete the task in given time. Third is discipline, which states the rules, regulations, guidelines, systems of an organization. Number 4, मेरे पीछे ये है unity of command, which says that there should always be one boss. The employee should not get confused that whose order to be followed. Number 5, unity of direction. One unit with one plan. There should not be mixed up plans to avoid the confusions and to increase the efficiency and effectiveness. And number 6 is subordination of individual interest to general interest. मैनेजर का इंटरेस्ट पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होना चाहिए, उसके बाद अपने बारे में सोचना है. ठीक है, अब ये आपके समझ में आ गए 6 के 6. अब फिर से इसको एक क्विक रब दे के आई विल गो ऑन टू 7, 8, 9. Now I move on to the 7th one, which is remuneration of persons. Remuneration means salary paid to them. So now this salary paid to the employees should not be below standards and should also meet companies' pocket. It should not flood outside company's pocket and it should not be below standard. Employee should not be counted as below standard. He should get at least the salary as much he is working. इतना वेजेस मिलना चाहिए जितना वो काम कर रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए. उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर सके, इतना सैलरी उसको जरूर मिलना चाहिए, मगर उतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी के पॉकेट पे असर पड़े. सो दिस बैलेंस इज नोन एज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए, और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कंपनी को उसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए. Then this is the most important term of these 14 principles. Centralization, and we talk about decentralization. Centralization simply means that power in the hands of top level. The power, किस चीज की पावर? डिसीजन मेकिंग पावर. बिजनेस स्टडीज में हमेशा पावर जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी. हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं उतर रहे हैं ग्राउंड में, हम खाली डिसीजन लेने के लिए उतर रहे हैं. और क्या डिसाइड करने के लिए? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े बड़े फैसले हैं, वो डिसाइड करने के लिए. तो डिसीजन मेकिंग पावर इन हैंड्स ऑफ टॉप level. Okay, and decentralization says equal distribution of power. पावर का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल कह सकते हैं हम इसको, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं. इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल के हाथ में है सब कुछ. ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया, सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी, सब लोग एंजॉय करेंगे वो पावर. ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. राइट, लेकिन फेयोल ये कहते हैं कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और ना ही पूरी डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए. क्योंकि अगर वो पूरी सेंट्रलाइज्ड होगी, सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हाथ में होगी, तो डिसीजन आने में डिले हो जाएगा, जिससे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा. और सारी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मेजर डिसीजंस होते हैं जो सिर्फ टॉप लेवल को ही लेने चाहिए. इसीलिए एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज द मिक्सचर ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. समझ आ गया? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है.
पूरे प्रिंसिपल्स का। ओके, सो सेंट्रलाइजेशन समझ आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गई, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन समझ में आ गई है, सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज। नाउ what else? This is also very important. Principle of scalar chain. Now, what is the scalar chain? The scalar chain is line of authority. Now, जैसे ही स्केलर चेन आप अपने पेपर में पढ़ेंगे, अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, अगर वो 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो जैसे ही स्केलर चेन वर्ड पढ़ेंगे ये डायग्राम तुरंत बना देना बिना कुछ सोचे समझे। नाउ द स्केलर चेन सेज this is the line of authority. Okay, this is the topmost position. If D wants to communicate with G, अगर ये एक एम्प्लॉय है D, इसको कम्युनिकेट करना है G के साथ, तो वो क्या करेगा? D will pass on the message to C, C से B पे आएगा, B से A पे आएगा, A से E पे आएगा, E से F पे जाएगा, एंड फाइनली G को पता चल जाएगा कि उसको क्या इंफॉर्मेशन देनी। अब फेयोल के हिसाब से इससे क्या होता है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कंपनी में, सबको सब चीज पता होती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्विकली निकल सके, राइट। लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डी ने जी को इमीडिएटली देनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्जेंट है, तो डी कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू जी बाय क्रिएटिंग गैंग plank. By creating this plank, he can talk directly to G. Okay, but only in the case of emergencies. तो ये रूट बनाया है फेयोल ने ताकि किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब बच्चों हमने कितने पढ़ लिए? 9 पढ़ लिए। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डिविजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, उसके बाद वाले सारे मेरे पीछे हैं, remuneration of employees, centralization and decentralization and scalar chain। 9 complete हो गए। कितने आसान है। अब फटाफट इसको फिर से एक क्विक रब देखिए, I'm gonna come back। Now we have principle number 10, that is principle of order। अब ये कौन सा ऑर्डर है? ये हमारा कोर्ट वाला ऑर्डर नहीं है, ये हमारा ऑर्डर किसी को ऑर्डर देना नहीं है, ये हमारा ऑर्डर है कि सभी सामान को, सभी ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी जगह पे फिक्स, अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे ही बैठ के काम करें, अपनी फिक्स जगह पे ही सामान रखा जाए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई और उसकी सर्च के लिए जाए, कोई और उसकी हंट के लिए जाए, तो वो ढूंढता ना रह जाए। That means the men and the resources, the men and the material in an organization should be placed at their correct place। उनकी जगह बार बार रोज चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के लिए परचेज डिपार्टमेंट लेफ्ट साइड में है तो अगले हफ्ते पे वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो काम करने वालों को खुद भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कोई और अगर उनको ढूंढ रहा है तो भी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि अगर टूल बॉक्स, सबको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में टूल बॉक्स रहता है, राइट। अब टूल बॉक्स की एक फिक्स जगह है, अब वो फिक्स जगह से किसी ने वहां से सामान उठाया और उसको अगली बारी अपनी फिक्स जगह पे नहीं रखा, तो जो उसकी सर्च कर रहा है उसने अपना सारा समय वेस्ट कर दिया, एक एक से पूछने गया कि वो कहां पड़ा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ men and material। men यहाँ पे बच्चों हमारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा है, जो हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, और मटेरियल मतलब हमारे अदर रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल। नाउ
वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे इक्विटी का मतलब हो गया सबको एक समान दर्जा देना। एक किसी बड़ी सी एमएनसी में बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग आके काम करते हैं, तो ऐसे नहीं है हर किसी के लिए अलग ट्रीटमेंट है। Everyone is to be treated in the same way by the managers, so that there should not be any kind of discrimination between their caste, their creed or their color. All the employees working at the same level should be treated all same. किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना is principle of equity. सबको एक समान तोलना, सबको एक समान ही दर्जा देना, सबसे एक समान से ही रिस्पेक्ट देने को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रीटिंग ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग एट सेम लेवल, वर्किंग एट सेम लेवल विद ड्यू रिस्पेक्ट। सबको एक सी ही रिस्पेक्ट देना, सबको ड्यू रिस्पेक्ट देना, सबको एक समान दर्जा देने को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। हमारा अगला प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमारा अगला प्रिंसिपल बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बाय पर्सनल मतलब कि हमारी कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, हमारी कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी स्टेबिलिटी कंपनी में जितनी अच्छी बनी रहेगी उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी। बिकॉज जो ज्यादा लंबे समय तक काम करता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ गया, वो डेल्ट हो गया आपके साथ भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, उसको चीजें समझाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और एक रिलेशनशिप भी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप एज मैनेजर शुड नॉट टर्मिनेट द एम्प्लॉइज फ्रीक्वेंटली। बहुत जल्दी टर्मिनेट मतलब नौकरी से निकाल देना, बहुत जल्दी एम्प्लॉइज नौकरी से निकाल देना, बहुत जल्दी नौकरी चेंज कराना, नए एम्प्लॉइज को रखना, ये बहुत हेल्दी काम नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे हेल्दी चीज ये है कि जिसको भी आप रख रहे हैं नौकरी पे, पहले ही सोच समझ के रखिए और एक स्टेबिलिटी बनाए रखिए कि वो जितने लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा उतना ज्यादा एफिशिएंटली वो काम कर पाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स वो दे पाएगा। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स दैट एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वर्किंग फॉर a longer period of time, should be stable with the organization. The company should not terminate the employees on frequent basis unless it is not necessary. Right? तो अब हमने पढ़ लिए 12 principles. Now 13th principle is initiative. Now बच्चों, initiative बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम एक ही शब्द से समझते हैं इसको, सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव मतलब सेल्फ मोटिवेशन, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास, आप मैनेजर हैं, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है और कहता है ये काम मैं करना चाहता हूं, तो आप उसको मना मत करिए। लेट हिम डू, लेट हिम ट्राई, लेट हिम हैंडल द थिंग्स हिज ओन वे। इसी को बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अगर वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ सजेशन दे रहा है, तो अब हर बारी आप उसको डिनाई मत करो, मना मत करो। Listen to his suggestion, think about it. Maybe he is working in a much better way. Maybe he is giving a very good suggestion. So every time a manager, if he says no to his employees, तो उसका मोटिवेशन बिल्कुल, मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसीलिए फेयोल ये कहते हैं कि हमें हर एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए। अगर हम उसको मौका देंगे तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। तो इनिशिएटिव इन सिंपल टर्म्स वी अंडरस्टैंड इट बाय सेल्फ मोटिवेशन। समझ आ गया आपके? इनिशिएटिव इज आप एम्प्लॉइज को मौका दीजिए करने का, उसको चीजें हैंडल करने का मौका दीजिए, उसको अपने हिसाब से काम करने का मौका दीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू, और अगर मिस्टेक नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उसको आपसे पैट, शाबाशी जरूर चाहिए, ताकि वो अगली बार जब वो काम करेगा तो वो अपने आप और ज्यादा एनर्जेटिकली काम करेगा। राइट? नाउ द 14th प्रिंसिपल इज esprit de corps।
स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इन स्ट्रेंथ, एकता। अगर सब लोग एक होके काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, सब एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, सबका एक ही गोल है, सब एक होके काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत इजीली अचीव हो जाएगा और बहुत इफेक्टिवली अचीव हो जाएगा। और जितना ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उतना ज्यादा काम अच्छे से नहीं होगा। तो मैनेजर की ये ड्यूटी है कि विद कोऑपरेशन, विद कोऑर्डिनेशन, विद हार्मनी वो काम करवाए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सब कुछ अच्छा ही एंड हो। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करवाए कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से और हार्मनी से, ताकि हमारा यूनिटी इन स्ट्रेंथ अचीव हो पाए, ताकि सब लोग एकजुट होकर एक समान, एक ही गोल के लिए काम। लेट अस रिवाइज ऑल ऑफ देम। एक बार सारे सीक्वेंस में बोल लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। डिविजन ऑफ वर्क, नंबर 1, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure, इनिशिएटिव एंड एस्पेरेट डी कॉर्प्स। नाउ योर हमारे 14 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। बार बार देखिए वीडियो को ताकि आपको लर्न हो जाए, और मेरे साथ ऐसे ही अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये टॉपिक तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म का मतलब क्या है, और जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है। बाकी उसके उन कीवर्ड्स के आगे और पीछे आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपकी अपनी है डेफिनेटली, लेकिन उन कीवर्ड्स से आपको अपना फोकस हटाना नहीं है, उन्हीं के बारे में बात करनी है। Now here I end up with my video. You have to like the video, you have to share to your other friends also, ताकि सबको समझ में आ सके, and definitely comment करिए अगर आपको जरूरत है। Thank you.